पे मम्मी सुबह 8 बजे के टाइम पे गाय को घास वगैरह दे रही थी, तो मैं मम्मी को दौड़ते हुए बताने गया। तो मम्मी ने पहले घास छोड़ा, मम्मी ने कहा कि अब नहीं करना मुझे इस सारे काम, अब मैं मजे करूंगी, ठीक है। तो मम्मी थोड़ा रोने लग गई थी। एग्जाम खत्म हुआ था 5:30 AM पे। टोटल मेरा जो इंटरव्यू राउंड पूरे रात चल रहे थे। तो अरे तो सर पहले तो 5 मिनट तो मैं बिल्कुल ब्लैंक रहा, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था सर क्वेश्चन रिपीट किया, मैंने बोल क्या रहे हैं, ठीक है। हाय गाइस, दिस इज यश गोयल। तो आज की वीडियो हमारे साथ होने वाले हैं रोहित नेगी। ही इज द वन हु हैज क्रैक्ड द पैकेज ऑफ 2.04 करोड़ फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया का हाईएस्ट पैकेज बोल सकते हो तुम। एंड काफी बार ये न्यूज आर्टिकल्स वीडियोस में भी आया है, तुम्हें पता होगा। तो उनसे हम बात कर रहे होंगे उनकी जर्नी के बारे में। इफ यू डोंट नो, ही वाज फ्रॉम अ Tier 3 कॉलेज। उन्होंने गेट का एग्जाम दिया, देन ही वेंट इनटू IIT गुवाहाटी, एंड IIT गुवाहाटी से उनका इंडिया का सबसे हाईएस्ट पैकेज लगा है। तो समथिंग दैट ही कुडंट इवन ड्रीम ऑफ, दैट वाज इनटू रियलिटी। तो उनकी स्टोरी काफी मोटिवेटिंग। तो इनसे हम बात कर रहे होंगे रिगार्डिंग हिज स्ट्रैटेजी, व्हाट ऑल रिसोर्सेज ही फॉलोड, इन्होंने कहां से प्रिपेयर किया, कैसे प्रिपेयर किया, एंड हाउ ही फाइनली लैंडेड दैट ऑफर। इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था एक 2 करोड़ की कंपनी का। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी फर्दर अडू। यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले देयर इज अ स्मॉल मैसेज फॉर यू ऑल फ्रॉम cryo.do. Cryo.do, if you don't know, it's one of the India's largest work experience based tech program for developers. So they provide the learning programs in different technologies, be it backend development, full stack development, and a lot more. So you can see a lot of people have been hired through Cryo.do in companies like Capillary, NinjaCart, Cred. A lot of amazing startups hired through Cryo.do. Also, they follow a modern work-based learning approach that is very new to Indian system. You will build some projects through which you can get to know how projects are built in a real-life company, let's say Zerodha or Airbnb or Amazon. Along with that, you will be there are 2 options, particularly for full stack developer program and backend developer program, and they provide you a 1-week complete trial basis. Like, you can try, and if you like, then only you should go ahead and purchase their course. So for full stack development program, you can check out what all skills will be taught to you in this program. You will be taught these many different projects. Along with that, these skills like Linux, HTML, Git, CSS, AWS, Bootstrap, JavaScript, a lot of these skills you will be mastering at. Along with that, there is a backend development program as well, through which you'll be building some projects like like you will be having some web developer essentials, Java essentials, implement Java skills using URL shortener, and a lot of other projects. And you get a chance to work at tech unicorns like companies like Meesho, PharmEasy, Upgrad, Ola, Flipkart, and a lot more. So you can check out this amazing platform. You can apply the link Arsh_Goyal and you can unlock your gift. So in this gift, you will be getting a free guide to best resume, free guide to many projects, along with that free guide to product based company interviews. Along with that, if you are looking forward to purchase any of the courses, you can use the code Arsh_Goyal to get complete 10% discount on any of the courses. So now let's move on to the video. Everyone, तो आज हमारे साथ वो होने वाले हैं जिनके कारण बहुत सारे लोगों को गालियां पड़ी होंगी अपने घर पे कि किसी का तो 2 करोड़ का पैकेज लग रहा है इंडिया में। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने उस चीज को कवर किया है। आज हमारे साथ होने वाले हैं रोहित नेगी। He's from IIT Guwahati and he has got an international package of 2 crores plus from Uber. तो उनसे डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसा था उनका रिएक्शन when he got this first offer, कैसा था उनके फैमिली का रिएक्शन, how he got to this point, मतलब उन्होंने कैसे अपनी जर्नी एक Tier 3 कॉलेज से स्टार्ट करके and finally he has landed an offer with Uber. बहुत सारी डिस्कशन कर रहे होंगे रिलेटेड टू हिज प्रिपरेशन जर्नी, हिज रिसोर्सेज, व्हाट इज हिज सजेशन टू यू इफ यू वांट टू बी इन हिज शूज। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ रोहित। थैंक यू अर्श भाई फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। काफ़ी अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित और करंटली आई एम परसुइंग माय मास्टर फ्रॉम IIT गुवाहाटी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और रिसेंटली आई गॉट एन इंटरनेशनल ऑफर फ्रॉम ऊबर ऑफ मोर देन 2 करोड़ प्लस। और मैं उत्तराखंड से हूँ बेसिकली, तो यही मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो यार मतलब इंट्रोडक्शन तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि रोहित नेगी नाम का बंदा है, उसका 2 करोड़ का पैकेज लगा है, दैट्स फाइन। मतलब जब सबसे पहले जब तुम्हें ये पता चला, मतलब जब शॉर्ट लिस्टिंग की न्यूज आई या पता चला फाइनली कि यू हैव गॉट दिस ऑफर, तो क्या रिएक्शन था तुम्हारा? मतलब हाउ वाज द फीलिंग तुम्हारी, तुम्हारे पेरेंट्स की, तुम्हारे रिलेटिव्स की? मतलब न्यूज़पेपर्स में भी कवर हुई थी ये चीज, तो हाउ वाज दैट फीलिंग एग्जैक्टली? एक्चुअली भाई हुआ क्या था कि मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ था 5:30 AM पे। टोटल मेरा जो इंटरव्यू राउंड पूरे रात चल रहे थे, तो 5:30 AM के राउंड खत्म हुआ था। तो मैं थोड़ा नेक्स्ट राउंड के लिए भी प्रिपेयर होना शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे 2-2.5 घंटे की नींद चाहिए थी, ठीक है। तो मैं बेड पे तो आ गया,
लेकिन नींद नहीं आ रही थी कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो 6 बजे मुझे पीओसी का कॉल आया कि रोहित आपका सिलेक्शन हो चुका है, पर उसमें ये पता नहीं था कि ये इंटरनेशनल ऑफर है डोमेस्टिक ऑफर है, दोनों ऑफर लेके आई थी ऊबर, ठीक है। तो मैं काफ़ी खुश हो गया था 6 बजे ही। मम्मी सो रही थी बगल में ही, तो मैं वहीं पर लेट रखा था। फिर क्या हुआ कि फिर मैं वेट करने लग गया कि ऑफिशियल कब आए। जब तक ऑफिशियल नहीं आता तब तक आदमी खुश नहीं होता, तो वही मेरे साथ हुआ। फिर जब 8 बजे के टाइम पे मैं स्क्रॉल कर रहा था ईमेल को, तो मेल आया कि हाँ रोहित आपका सिलेक्शन हो चुका है ऊबर में, ठीक है, और आपको इंटरनेशनल पैकेज ऑफर हो रखा है। जब मैंने लिस्ट पे अपना नाम देखा तो मैं बहुत खुश हो गया, ठीक है। तो पहले तो मैं ज़मीन पे बैठ गया था गलत, ठीक है। और हम थोड़े गांव के इलाके से हैं, तो वहाँ पे उस टाइम पे मम्मी सुबह 8 बजे के टाइम पे गाय को घास वगैरह दे रही थी। तो मैं मम्मी को दौड़ते हुए बताने गया, तो मम्मी ने पहले घास छोड़ा। मम्मी ने कहा कि अब नहीं करना मुझे इस सारे काम, अब मैं मज़े करूँगी, ठीक है। तो मम्मी थोड़ा रोने लग गई थी। तो फिर पापा थे नहीं, तो पापा उस टाइम पे थोड़ा पानी वानी लगाने गए थे खेतों पे सुबह पे। तो पापा आए फिर घर पे, तो पापा भी थोड़ा इमोशनल से हो गए थे, पापा भी काफ़ी खुश थे। सही सही सही, मतलब अमेजिंग सी फीलिंग होती है ना। मतलब सब लोग आसपास बात कर रहे हैं कि भाई इतना बड़ा पैकेज लगा है, 2 करोड़ का पैकेज लगा है, सारे न्यूज़पेपर्स ने कवर कर लिया, सारे रिलेटिव्स के पास ये न्यूज़ पहुंच जाती है, मतलब बहुत ही सही फीलिंग होगी, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद यार मतलब हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कशन कर रहे होंगे ताकि और लोग मोटिवेट हो, और लोगों को मतलब जिस जो लोग प्रोग्रामिंग की फील्ड में काफ़ी हद तक पहुंच जाते हैं बट फिर एक पॉइंट पे आके वो डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं कि हमसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे या दिस फील्ड इज नॉट फॉर मी। तो बेसिकली ये वीडियो का मोटिव हम यही रखेंगे कि थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिल सके, थोड़ा सा वो समझ सकें कि कैसे कैसे चीज़ें वर्कआउट करती हैं। एंड ईजी किसी के लिए भी नहीं होता, मतलब बहुत सारी स्ट्रगल्स, बहुत सारी मतलब कंप्लीट जर्नी ही बहुत स्ट्रगल से भरी होती है। तो मेजर हमारा मोटिव ये होने वाला है। स्टार्ट करते हैं तुम्हारे ग्रेजुएशन कॉलेज से। लाइक यू वर फ्रॉम टियर 3 कॉलेज। टियर 3 कॉलेज में मतलब उस कॉलेज में तुमने क्या कुछ पढ़ा, उस कॉलेज में क्या अवेयरनेस थी, हाउ यू स्टार्टेड अप, तुमने गेट क्यों चूज किया, तो थोड़ा सा अपने ग्रेजुएशन कॉलेज के बारे में व्यूअर्स को बताना चाहते हो तो। हाँ, मैंने ग्रेजुएशन तो GBPIT गुड़दौड़ी से करी। तो पहले कॉलेज गए थे तो कॉलेज में कुछ था नहीं, मतलब कॉलेज पहाड़ों में था, तो मतलब एक्सपोजर को बिल्कुल था नहीं। तो मतलब ऐसी दुकानें भी बहुत कम थी वहाँ, तो एक्सपोजर 0 था। तो पहले शुरू करा, पहले 3 साल तो ऐसे निकल गए, मतलब खुद को ढूंढने में करना गया है, तो ऐसी मस्ती जिम इसी में पूरा टाइम 3 साल निकल गया। फिर लगा कि हाँ अब कुछ करना है, क्योंकि घर भी जाना था, मम्मी पापा को आंखें दिखानी थी कि हाँ ये क्या करा तुमने पूरे बीटेक में, क्योंकि फीस तो उन्होंने पे करी थी पूरी। तो उसके बाद मैंने देखा कि यार कंपनियाँ आ रही थी, ठीक है। तो TCS का NQT का एग्ज़ाम होता है, तो ऑफ कैंपस ही होता हो, तो वो मैंने भरा था। तो फर्स्ट राउंड तो क्लियर हो गया था, तो उस पर इंटरव्यू की कॉल आई थी, लेकिन मैं बहुत ही घबरा गया। मुझे डर था कि नहीं होना मेरा, ठीक है, तो मैं गया ही नहीं देने, ठीक है, अंदर इतना डर था मुझे। फिर कॉलेज में एक और कॉलेज में सिर्फ एक ही कंपनी आई थी हमारी, विप्रो बस, वो भी 3-3.5 का पैकेज था उनका। तो मैंने सोच लिया था कि यार इसमें नहीं बैठूंगा, गेट की तैयारी करूंगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि फिर ये हो जाता था अगर नहीं होता तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और गिर जाता मेरा, ठीक है। तो मैंने सोच लिया था गेट की प्रिपरेशन करूंगा फाइनल ईयर में आके, ठीक है। तो अगस्त का टाइम था, तो मेरे एक दोस्त था विकास कुमार, तो वो गेट की तैयारी कर रहा था, तो उससे मैंने सारी डिटेल्स वगैरह ली, क्या क्या करना है, सारा पूरा कोर्स लिया। तो उसके बाद मैंने गेट पढ़ना शुरू करा। तो गेट की एक एडवांटेज है, मतलब जो बंदे हैं नहीं, जो भी व्यूअर्स वीडियो को देख रहे हैं, इसमें देखो बेसिकली होता है कि जो टियर 1 टियर 2 के कॉलेज के बच्चे होते हैं वो बेसिकली बहुत कम बैठते हैं इसमें, मतलब ना के बराबर ही होते हैं। तो मतलब जो कंपटीशन होगा वो हम टियर 3 के बच्चों को होगा, और हार्डली 5000 बच्चे होंगे जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब आपको 5000 में से अंडर 1000 रैंक डालनी है अगर आपकी सीरियस प्रिपरेशन है। तो मैंने मेरे दिमाग में पूरा वही टारगेट था। और 50+ मार्क्स आपको चाहिए, तो आप बेसिकली सारे सब्जेक्ट कवर कर लेते हो, उसमें DSA वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्लेसमेंट में भी यूज़ होंगे। तो मैंने वही था सोच, तो मैंने वही प्रिपेयर किया। तो गेट में अच्छी रैंक आ गई, 202 रैंक आई, तो उसकी वजह से मुझे IIT गुवाहाटी में एडमिशन मिल गया। तो मतलब ये थी सारी जर्नी, कहाँ एक कंपनी में बैठ के उसका टेस्ट दे के इंटरव्यू में बैठने के लिए भी डरते हुए, एंड फाइनली फिर गेट की प्रिपरेशन की। मतलब गेट की प्रिपरेशन जर्नी कैसी होती है, मतलब आई डोंट हैव एनी वीडियो, मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं है गेट का। हाँ, तो गेट में जैसे मतलब कितने टाइम में अप्रोक्सीमेटली अगर किसी को गेट के लिए प्रिपेयर करना हो तो क्या प्रिपेयर कर सकता है, एंड क्या थोड़े टिप्स फॉर गेट। अच्छा, एक तो गेट CS का सिलेबस बहुत छोटा है, ठीक है, मतलब 10 सब्जेक्ट है टोटल, मतलब जो हमने बीटेक में पढ़े सारे वही सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और अगर हम मतलब 6 महीने चाहिए एक बच्चे को, अगर सीरियस प्रिपरेशन करेगा 6 महीने और 4 से 6 घंटे अगर वो सीरियस प्रिपरेशन करेगा, और हमको ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, एक मतलब कोई कोर्स खरीद लो आप, कोई भी, मतलब अपनी चॉइस का, क्योंकि पढ़ाते सब सही है, ठीक है। एक पेड लेक्चर ले लो, उसको ढंग से फॉलो करो, ठीक है।
उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर की बुक करनी है और एक टेस्ट सीरीज ले लेना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना गेट क्रैक करने के लिए। बस इतने में आपका मतलब 6 महीने 4 से 6 घंटे आप अच्छी से तैयारी करो, आपका गेट आराम से अच्छी रैंक से क्लियर हो जाएगा। तो चलो यार, मतलब IIT गुवाहाटी तक तो पहुंच गया। IIT गुवाहाटी में थोड़ी जर्नी कैसी रही? मतलब IIT गुवाहाटी में बहुत सारे कॉलेजेस से लोग आए होंगे, तो हाउ वाज योर 2 इयर्स? मतलब मेजरली तो ये ऑनलाइन में ही चला गया होगा ना ये सारा IIT गुवाहाटी का सीजन, बट स्टिल मतलब क्या एक्सपीरियंस था IIT गुवाहाटी में? क्या डिफरेंस तुमने देखा कि व्हेन यू शिफ्टेड फ्रॉम अपने ग्रेजुएशन वाले कॉलेज से IIT गुवाहाटी, तो क्या डिफरेंस था? कैसे आपस में, कैसे क्लासमेट्स थे, पीयर्स थे, तो उनसे क्या नॉलेज मिली एंड हाउ यू स्टार्टेड अप विद थिंग्स? जब मैं यहाँ IIT गुवाहाटी आया था तो पहले तो मुझे थोड़ा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था कि कहीं मैं टुक्के पे तो नहीं आ गया, मतलब रैंक टुक्के पे तो नहीं आ गया, ऐसा मतलब ऐसा डाउट तो सभी को होते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ भी वही सीन था, ठीक है। और देखा कि यार बच्चे तो काफ़ी तगड़े तगड़े हैं, मतलब कुछ कोडर तगड़े तगड़े हैं, कुछ थोड़ा कम लेवल के भी हैं। फिर मैंने थोड़ा खुद को कॉन्फिडेंस दिया, यार मैं तो रैंक ओपनर हूँ अपने कॉलेज का, तो कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ के जो फैकल्टी हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मैंने मतलब प्रोजेक्ट वगैरह यहीं आके बनाना शुरू करे, तो फैकल्टी भी C++ से प्रोजेक्ट बनाना शुरू करवाते हैं। तो मतलब ऐसा लगा हाँ यार मतलब कुछ तो बना लेंगे सही, कुछ तगड़ा सा। तो वही यहाँ सीखा। जो पीयर ग्रुप है मतलब काफ़ी हेल्पिंग है यहाँ, ठीक है। और जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब मैंने 3 महीने पहले बिताए थे यहाँ, तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही है, मतलब फैसिलिटी बहुत सही है कॉलेज के अंदर। मेरा टीयर जो मेरा पुराना कॉलेज था वहाँ तो मतलब कुछ था ही नहीं, ना के बराबर ही था। यहाँ देखा तो रोज़ साफ सफाई हो रही है, मैस का खाना अच्छा है, मतलब सब कुछ ही फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, ठीक है। हमको पर्सनल कंप्यूटर एलोकेट हुए कॉलेज की ओर से। मतलब लगा कि हाँ मतलब खर्चा काफ़ी होता है मतलब टीयर 1 कॉलेजों में बच्चों के ऊपर, तो उसकी वजह से थोड़ा मोटिवेशन मिला कि हाँ अब पढ़ना है। तो उसके बाद यहाँ की कोडिंग वगैरह करना शुरू करा मैंने क्योंकि मुझे DSA मुझे आता था, क्योंकि गेट में हमने ऑलरेडी DSA वगैरह कवर कर चुके थे। तो मैंने STL वगैरह पढ़ा, फिर DSA करा, तो ऐसे में मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई। तो चलो अब बात कर लेते हैं मेजर तुम्हारे ऑफर के बारे में, मतलब ऊबर के प्रोसेस के बारे में। ऊबर का प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब मेजरली सारे प्रोसेस ऑनलाइन टेस्ट से स्टार्ट होते हैं, फिर इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, तो ऊबर के प्रोसेस कैसा था एंड हाउ यू फाइनली, कितने राउंड्स थे, मतलब वो थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं ना। अच्छा, हाँ ऊबर का स्टार्ट हुआ था पहले एक इनिशियल, मतलब एक इंटरव्यू के लिए पहले क्वालिफाई होना पड़ता, तो पहले एक राउंड होता है, तो उसमें कोडिंग के क्वेश्चन थे। तो ऐसी था कि 1 आवर का टाइम था, 3 क्वेश्चन थे, तो उसको करने थे। तो मैंने तीनों क्वेश्चन कर लिए थे सॉल्व। तो कई बार ऐसा होता है कि IITs में मतलब ये चीज़ काफ़ी कॉमन है कि आप सारे क्वेश्चन भी कर लो, तो आपका जरूरी नहीं कि नाम आया है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ बहुत कॉमन है। तो देखा कि हाँ चलो देखते हैं होता कि नहीं होता, तो तीनों क्वेश्चन तो कर लिए थे, तो देखा नाम आ गया था, तो 16 बच्चे शॉर्टेस्ट थे। तो उसके बाद 1 दिसंबर को इंटरव्यू शेड्यूल था, तो रात से इंटरव्यू शुरू होना था, तो 12:55 AM से शुरू हुआ था। तो पहला राउंड था कोडिंग राउंड। तो उसमें क्या था कि मैं बैठा हुआ, इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, तो कैमरा ओपन था, स्क्रीन शेयर थी। अब थोड़ा मतलब आदमी होपलेस हो जाता है कि जब कोई एकदम सामने से क्वेश्चन पूछे यार आपको उसी टाइम कोड लिखना है, थोड़ा हो जाता है, ठीक है। अरे तो सर पहले तो 5 मिनट तो मैं बिल्कुल ब्लैंक रहा, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था सर क्वेश्चन रिपीट क्या, मैंने बोल क्या रहे हैं, ठीक है। तो मैंने फिर सर से टाइम मांगा, मैंने सर थोड़ा मुझे क्वेश्चन पढ़ने दीजिए आप। तो फिर मैंने क्वेश्चन पढ़ा, फिर जैसे एक क्वेश्चन मुझसे बन गया अच्छे से, ठीक है, उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन आराम से बना लिए। तो ऐसे होता है कि ऊबर का पहला राउंड कोडिंग राउंड होगा, 45 मिनट का होगा। उसमें ऐसा होता है कि आप जितने क्वेश्चन कर पाओ 45 मिनट के अंदर उतना आपके लिए अच्छा है, एक के बाद अगला, ठीक है। अगर आप एक पे अटक गए तो दूसरे पे नहीं जाते हो, ठीक है। तो आपको जितना ज़्यादा आप कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का उन्होंने मुझसे कोड लिखवाया, बाकी 2 क्वेश्चन का उन्होंने मुझसे लॉजिक पूछे थे, क्योंकि 45 मिनट के अंदर सब कोड लिख नहीं सकता कोई, ठीक है। तो वैसे ही फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया मेरा। उसके बाद सेकंड राउंड होता है सिस्टम डिजाइन का। तो वो होता है लो लेवल सिस्टम डिजाइन, जिसमें क्लासेस रहती हैं, कुछ फंक्शन ऑलरेडी रहते हैं, उनको हमको अंदर पूरा कोड लिखना पड़ता है उस फंक्शन के हिसाब से। तो वही मेरा सेकंड राउंड था सिस्टम डिजाइन का, ठीक है। तो जो बच्चे भी DSA वगैरह पढ़ रहे हैं, अगर आपको DSA अच्छे से आता है तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको लो लेवल सिस्टम डिजाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा था, ठीक है। हाई लेवल पढ़ने की जरूरत होती है, लो लेवल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर मेरा सेकंड राउंड भी क्लियर हो गया, क्योंकि DSA अच्छे से करा था। उसके बाद मैं गया थर्ड राउंड में। तो थर्ड राउंड था मेरा HR प्लस प्रोजेक्ट राउंड था। तो फिर सर ने मुझे पूछा कि अपना प्रोजेक्ट बताओ, आप अपना जो भी आपका फेवरेट प्रोजेक्ट है। तो मैंने ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट बताया अपना। फिर सर ने मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे, काफ़ी क्वेरीज पूछी, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड भी काफ़ी पूछा, तो मैंने अच्छे आंसर दिए, मेरा सर सेटिस्फाई हो गए थे। फिर जो बेसिक HR क्वेश्चन होते हैं
कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, ऐसे वैसे क्वेश्चन। तो फिर अच्छे से इंटरव्यू हो गया था, तो यही था पूरा प्रोसीजर। बढ़िया। तो मतलब अब डिस्कशन तो हो गई रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस ऑफ उबर, मतलब हाउ डिड यू प्रिपेयर, अगर व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे कौन कौन से रिसोर्सेज यू फॉलोड फॉर डीएसए, मतलब तुमने डीएसए के लिए क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स जैसे ओएस डीबीएमएस, ऊप्स के लिए क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए, तो दैट वुड मतलब उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करें। अगर मैं सच कहूँ तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मैं गेट पे पढ़ चुका था, तो वो मैंने दोबारा नहीं पढ़ना पड़ा। हाँ, कुछ टॉपिक जैसे डीपी टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग मैंने आदित्य वर्मा सर की वीडियो से, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल ही पढ़ाया उन्होंने डीपी तो। और थोड़ा ग्राफ पढ़ा था मैंने अब्दुल बारी सर के लेक्चर से। तो बाकी टॉपिक तो मैंने मतलब बाकी मैंने जो प्लेटफॉर्म यूज़ करे कोडिंग के लिए वो गीक्स फॉर गीक्स किया, इंटरव्यू वेट किया, थोड़ा बहुत लीड कोड यूज़ किया, और बाकी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे थे। तो ऐसे ही अराउंड 1200 प्लस क्वेश्चन मेरे हो चुके थे सॉल्व, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस हो गई थी। और बाकी जो आपने बोले डीबीएमएस होता है, अपना ओएस होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है, तो ये सब गेट का ही पार्ट है। तो मैंने ये सब गेट में कवर कर चुका था, मेरे पास नोट्स पड़े थे, तो मैंने वही रिवाइज करे दोबारा। हाँ, ऊप्स नहीं था गेट में, तो ऊप्स को मैंने सौरभ शुक्ला सर के लेक्चर से पढ़ा। वो काफ़ी काफ़ी डिटेल में उन्होंने पढ़ाया, तो आप सभी उसको रिफर कर सकते हैं। अब बाकी डीएसए तो आप कोई भी फॉलो करो, यूट्यूब पे इतने सारे, जो आपको पसंद हो आप उसको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट। और इसके अलावा मतलब रिज्यूमे का क्या पार्ट था, मतलब रिज्यूमे से क्वेश्चंस पूछते हैं या रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के टाइम पे काम आया था, मतलब कैसा रिज्यूमे बनाया था या कैसा रिज्यूमे बनाना चाहिए? अच्छा, मतलब अगर मैं बात करूं, अगर टीयर 3 वाले बच्चे, अगर आप टीयर 1 कॉलेज में हो, तो मतलब मेरे ख्याल से जो मुझे अभी तक जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, तो टीयर 1 कॉलेज में रिज्यूमे का उतना फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कैंपस में बहुत फर्क है, पर आपके ऑन कैंपस में नहीं है। तो मुझे भी फील हुआ कि उन्होंने कुछ ज़्यादा, क्योंकि पहले 2 राउंड में तो मेरे रिज्यूमे खुला भी नहीं था, 3rd राउंड में खुला था। तो सर ने मुझे पूछा था कि आप अपना वो बताइए फेवरेट प्रोजेक्ट जो भी रिज्यूमे के अंदर था, तो उसी पे पूरा डिस्कशन हुआ। तो टीयर 1 कॉलेज का मुझे आइडिया नहीं, बस टीयर 1 में कोई फर्क नहीं पड़ता आपको रिज्यूमे का उतना। एंड यार मतलब बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, बहुत काफ़ी सारी अच्छी नॉलेज मिली होगी मेरे व्यूअर्स को भी, एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने देखी तुम्हारी जर्नी से, बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेट हुए होंगे इससे। तो अब जाते जाते मतलब कंक्लूडिंग पार्ट में, एनी फाइनल पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू द व्यूअर्स, मतलब कुछ फ्रॉम योर हार्ट जो आ रहा है अभी कि तुम बताना चाहते हो कि दैट कैन हेल्प अदर्स। हाँ, मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा जूनियर्स को कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो आपको गेट के लिए करना है, आपको ऑफ कैंपस करना है, प्लेसमेंट के लिए करना है, तो एक बार ना आप अपना पूरा वो रिसोर्सेज गैदर कर लो कि हाँ मुझे इस रिसोर्सेज से पढ़ना है, ठीक है। आप ये सोच लो कि ये रिसोर्स आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। आप मेरी मत सुनो, अर्श भाई की मत सुनो, किसी की मत सुनो, अपनी सुनो बस, ठीक है, कि ये रिसोर्स मेरे लिए बेस्ट है और ये मेरे लिए काम करेगी। ये आपके अंदर सेल्फ बिलीव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना उस वाले रिसोर्स से कि वो बंदा कुछ और कर रहा है, वो बंदा कोड फोर्स कर रहा है, वो कोड सेव कर रहा है, ये बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत है। अपने रिसोर्स पे बिलीव रखो, बस बिल्कुल काम करेगी। मैंने भी सेम वही स्ट्रेटेजी अपनाई, आपके कोई और स्ट्रेटेजी काम आ सकती है। तो यही मेरी एडवाइस होगी, अपनी जो भी सेल्फ बिलीव है उसमें आप बिलीव रखिए बस। एंड यार मतलब रोहित भाई ने भी चैनल खोला है अपना, एक यूट्यूब चैनल, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें काफ़ी सारे, मतलब नया चैनल स्टार्ट किया है, काफ़ी सारी चीज़ें डाल रहे हैं ऑलरेडी एंड डालने वाले भी हैं, तो ज़रूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा इनका चैनल भी, उसमें भी काफ़ी कुछ आएगा। एंड अब तो शायद यूएसए जा रहे हैं, तो यूएसए के व्लॉग्स वगैरह भी आएंगे। तो थैंक यू सो मच रोहित once again for being a part of this conversation and guiding my audience. Thank you so much once again. Thank you. I hope you people like this amazing video. बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी थी रोहित नेगी की, and for more such amazing videos, more such amazing content, don't forget to press the like button, subscribe this channel and share it with your friends.